پی ٹی آئی نے وزیراعظم کے دورہ پشاور کو پختونخوا عوام کے زخموں پر نمک پاشی قرار دے دیا۔ شوکت یوسف زئی کہتے ہیں یہاں پر لاشیں پڑی تھیں اور شہباز شریف 417 ارب روپے کا حساب مانگ رہے تھے۔ 417 ارب روپے صوبے کا حق تھا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں دیے گئے۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں بم دھماکے ہوئے، خودکش حملے یا دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے۔ امپورٹڈ حکومت نے خیبر پختونخوا کے فنڈز روک لیے۔ 230 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ امپورٹڈ وزیراعظم پشاور آئے جس دن لاشیں پڑی تھیں، اس دن انہوں نے آ کر یہاں کے عوام کے اوپر نمک پاشی کی ان کے زخموں پر کہ لاشیں پڑی تھیں، وہ کہہ رہے تھے 417 ارب روپے کہاں چلے گئے، اس کا حساب دو۔ تو یہ چونکہ کاروباری لوگ ہیں، ایسے موقع پہ بھی ان کو یہ یاد رہا کہ 417 ارب روپے کہاں گئے۔ مجھے افسوس ہے جو شہباز شریف صاحب نے جو اپیکس کمیٹی میں بات کی ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا دور تھا، اس میں ہم نے دہشت گردی کے اوپر کتنا مؤثر قابو پایا تھا، کتنی دھماکے ہوئے ہمارے دور میں، کتنی ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے دور میں، کتنی جو ہے نا خودکش آئے ہمارے دور میں۔ الحمدللہ ہم نے تو اس کو بالکل کاؤنٹر کیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کا پابند ہے، معاشی حالات اس میں آڑے نہیں آ سکتے۔ جمعرات تک پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کارکن الیکشن کی تیاری کریں، 90 روز میں ضمنی انتخابات ہونا کلیئر ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 33 ایم این ایز کے بائی الیکشن کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے، اور اگلے چند دن کے اندر اگلی جو قسط ہے وہ 30 سے زیادہ ایم این ایز کی الیکشنز کی، بائی الیکشنز کی، اس کی بھی تاریخ کا اعلان کر دے گا الیکشن کمیشن۔ کوئی کسی کے دماغ میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے والا ہے، یہ 13 اپریل یا اس سے پہلے ہونے والا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں، تمام جو ورکر ہیں تحریک انصاف کے، ان سب کو ہدایت ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایک بھی دن آپ ضائع نہیں کریں، آپ فوری تیاری جس نے ابھی تک نہیں شروع کی ہے وہ فوری تیاری شروع کر دے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، اس کی شرائط ناقابل تصور ہیں، لیکن مجبوراً ہمیں پوری کرنا پڑیں گی۔ اور ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے وہ اٹس بیونڈ امیجنیشن، لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے، ہم نے ہر صورت کرنا ہے۔ تو ان تمام مشکلات میں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ وفاق ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں سی ٹی ڈی کو ہم جس طریقے سے بھی مضبوط کر سکتے ہیں، آگمنٹ کر سکتے ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے، اپنا جو ایکوپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ ہم حاضر ہیں، کیونکہ یہ وفاق ہے، چاروں صوبوں ہماری اس ملک کی اکائیاں ہیں، ہم نے مل کر چلنا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا۔ شہباز شریف نے 10 ماہ میں معیشت اور جمہوریت کو تباہ کر دیا۔ شہباز شریف نے ڈھٹائی اور فسطائیت کے ذریعے معیشت اور جمہوریت کو تباہ کیا۔ شہباز شریف نے بنیادی انسانی حقوق سلب اور قانون کی حکمرانی ختم کر کے جمہوریت اور معیشت کو تباہ کیا۔ شہباز شریف کی انہی حرکتوں کے سبب دہشت گردی بھی پھیلی ہے۔ ایک ہفتے میں حکومت کی پھر پیٹرول بم سے بمباری کی تیاری۔ آئی ایم ایف کے ڈو بور کے مطالبے پر عوام پڑیں گے عوام پر بھاری۔ حکمرانوں نے پیٹرول کی قیمتوں پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کے لیے کمر کس لی۔ پیٹرول اب کی بار کتنا مہنگا ہوگا، جانیے اس رپورٹ میں۔ عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دار حکومت کی عوام پر مہنگائی کی بمباری۔ حکومت نے ایک ہی ہفتے میں دوسری بار پچھلے زخم سہلاتی عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاری پکڑ لی ہے۔ آئی ایم ایف کی کارگزاری پیٹرول کی بھی ٹرپل سینچری کی جانب پیش قدمی جاری۔ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہونے کے پھر باز گشت سنائی دینے لگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پہلے سے مہنگا پیٹرول مزید 30 روپے مہنگا ہوگا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی عائد کرنے پر بھی غور کرے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی موجودہ زیادہ سے زیادہ حد 50 روپے فی لیٹر میں سے 20 سے 30 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ اس کو 70 سے 80 روپے فی لیٹر کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی عائد کرنے کی بھی ٹھان لی ہے۔
IMF कर्ज लेने के जतन आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त मान ली गई। अब सरकारी अफसरान को अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। IMF से कर्ज लेने के जतन आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त मान ली गई। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान और उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात जमा करनी होंगी। सरकारी अफसरान को अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बैंक अफसरान और उनके अहल खाना के अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। बैंक तमाम अफसरान और उनके अहल खाना की तफसीलात साल में 2 मरतबा फराहम करने के पाबंद होंगे। बैंक तफसीलात 31 जनवरी और 31 जुलाई को FBR को देंगे। बैंकों में अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग में स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। बैंकों के अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग में स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। FBR की मावनत के लिए बैंक फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट्स का डाटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। डॉलर का रुपए को एक बार फिर धोबी पटका। कीमत में यकमुश्त 5 रुपए 22 पैसे का इजाफा। अमेरिकी करेंसी की नई कीमत 276 रुपए 58 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी रुपए की बेकदरी $1 280 रुपए का हो गया। वजीर खजाना के डॉलर के दबोचने के दावे अपनी मौत आप मर गए। अमरीकी डॉलर फिर रुपए पर झपट पड़ा। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज रुपए की बेकदरी में रही सही कसर भी निकाल दी। डबल सेंचुरी के बाद ट्रिपल सेंचुरी का इरादा बांध लिया। डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में फिर नुमाया इजाफा हो गया, जिसके बाद रुपया अपनी बेकदरी पर आंसू बहाने लगा। मुआशी माहिरीन ने भी दांतों में उंगलियां दबा ली। कहते हैं डॉलर की इतनी फुर्तियां समझ से बालातर हैं। यही हाल रहा तो डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर जाएगा। नया हो या पुराना पाकिस्तान, महंगाई निकाले अवाम की जान। बढ़ती महंगाई ने अच्छों के कस बल निकाल दिए। एक हफ्ते में 32 अशिया के दाम बढ़े। अदारे शुमारियात ने इदादो शुमार जारी कर दिए। हाय रे महंगाई अवाम की जान पर बनाई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 34.49% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में गिरानी 2.82% बढ़ी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। जिंदा मुर्गी के दाम 17 रुपए फी किलो बढ़े। लहसुन 66 रुपए, दाल मसूर 10 रुपए से ज्यादा फी किलो महंगी हुई। LPG सिलेंडर एक हफ्ते में 508 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 35 रुपए बढ़ी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमत में इस्तेहकाम रहा। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी निकाह के बंधन में बंध गए। फास्ट बॉलर का निकाह साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी इंशा के साथ हुआ। रुखसती बाद में होगी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी शादी का लड्डू खा लिया। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की नई इनिंग्स का आगाज। फास्ट बॉलर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शाहीन शाह अफरीदी का निकाह साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की साहबजादी इंशा के साथ हुआ। शाहीन शाह अफरीदी और इंशा अफरीदी की तकरीब निकाह का एहतमाम कराची की ज़करिया मस्जिद में हुआ। निकाह मौलाना अब्दुल सत्तार ने पढ़ाया। तकरीब निकाह में अहले खाना करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। शाहीन शाह अफरीदी ने सफेद रंग की शेरवानी जेबतन की हुई थी। निकाह की तकरीब के बाद शाहीन शाह अफरीदी रिसेप्शन के लिए अपने ससुर शाहिद अफरीदी के साथ मकामी क्लब में पहुंचे। इस्तकबालिया की तकरीब में कप्तान बाबर आजम समेत कौमी क्रिकेटर्स भी शरीक हुए। PCB के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान और साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा भी तकरीब में मौजूद थे। शाहीन अफरीदी ने कौमी टीम के खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। शाहीन शाह अफरीदी के निकाह पर साथी क्रिकेटर की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम ने शाहीन को मुबारकबाद दी।
Hi Shaheen, just wanted to wish you a massive congratulations. I want to wish you all the best for the future. I wish you all the love and happiness in the world. And just remember one thing, man. Happy wife, happy life. मेरी तरफ से शाहीन बहुत बहुत निकाह मुबारक हो. Shaheen, hello mate, Joe Denley here. Just wanted to say a massive congratulations. मेरी दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे. अल्लाह आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी कामयाबियाँ दे. May you find happiness, peace, love with your partner, inshallah. So happy for you and all my best wishes are with you. अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह मुस्कुराते रहो. दुआ करता हूँ कि इस तरह ही आबाद और खुश रहे. She's a very lucky woman. I wish you both all the best. Hi Shaheen bhai, I just want to say congratulations on the wedding. मुबारक. मेरी तरफ से शाहीन अफरीदी को बहुत बहुत मुबारक हो. मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ दे. शाहीन भाई आपको निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो. मेरी दुआएं आपके साथ हैं. आपको आपकी निकाह बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह ताला आपको ऐसी खुशियाँ अता करे. खुश रहो, आबाद रहो. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए. जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए हैं कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत हो तो बाहर दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है. अगर सब कुछ ठीक होता तो नौबत यहाँ तक क्यों पहुँचती. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की. दौरान समाअत शेख रशीद के वकील नईम हैदर और इंतजार हैदर अदालत के सामने पेश हुए. जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनसे सवाल किया कि किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है. आपने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, FIR को नहीं. वकील ने इस्तदा की कि अदालती हुक्म अदूली पर SHOs अपारा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए. जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इस वक्त कोई FIR नहीं थी, सिर्फ नोटिस को मुअत्तल किया था. वकील ने कहा कि उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर रखी थी जिस पर FIR हुई. उसी इंक्वायरी की बिना पर पुलिस ने समन नोटिस जारी किया हुआ था जिसको अदालत ने मुअत्तल किया. जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, अदालत ने नोटिस को मुअत्तल किया था. इसके तनासुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं. अदालत ने FIR के इंदराज के हवाले से नहीं रोका था, न ही आपकी इस्तदा थी. अदालत ने शेख रशीद के वकील को पटिशन पढ़ने की हिदायत करते हुए सवाल किया कि आपकी पिटीशन में इस्तदा क्या थी. शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि हुक्मनामे से ये तासुर गया कि मामला कोर्ट में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे. जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है. अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी. सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मुश्किलात में मजीद इजाफा. बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर कराची में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची के मोचकू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया है. शेख रशीद पर मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर दर्ज किया गया है. आम खबर से आपको आगाह करें. कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों पर पोलिंग 19 मार्च को होगी. मजीद जानते हैं सज्जाद काज़मी से. जी सज्जाद, क्या तफसीलात हैं? ऐसी है, इलेक्शन कमीशन ने मजीद 31 वो नशिस्तें जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे दिए थे, वहाँ पर मजीद आप जो इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल है वो जारी कर दिया है. और जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 19 मार्च को इन 31 हलकों पर जो है पोलिंग हो सकेगी. इस वजह से ये गाइडलाइन दी गई है कि उम्मीदवार जो है 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा सकेंगे, जबकि 18 फरवरी तक कागजात नामजदगियों की जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी. और 2 मार्च को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा, जबकि 19 मार्च को ये हतमी दिन होगा पोल डे, जिससे जहाँ पर जब पोलिंग की जा सकेगी. जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी. अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. चेयरमैन PTI इमरान खान के इंतखाबात ना लड़ने के फैसले के बाद PDM का यू टर्न. हुकूमती इत्तेहादियों ने 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा कर लिया. कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला. इमरान खान आउट, PDM इन.
हुकूमती इत्तेहादियों का मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। तमाम हलकों में मुत्तफिका उम्मीदवार लाने की तजवीज़ पर भी गौर शुरू कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में PTI के साबिका अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने साबिका अरकान कौमी असम्बली को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम का भी आगाज कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेना शिकस्त का इकरार है। गमले में उगाए हुए सियासतदान की सियासत 4 दिनों की चांदनी की तरह होती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि इमरान नियाजी डब्बा बन चुका, डब्बे में बैठकर शर और फसाद फैलाता है। उनका कहना था कि इमरान खान जान ले टीवी के डब्बे में बैठकर तकरीर झाड़ने और अवाम की अदालत में पेश होने में फ़र्क है। डब्बा सियासतदान की जेब में खोटे सिक्के रह जाएंगे जो बचते रहेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। जमात इस्लामी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी ने टिकट के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की दरखास्तें मांग ली। MQM पाकिस्तान का भी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल है। 6 से 8 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं, जबकि कौमी असम्बली की 30 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की शमूलियत के बाद MQM पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तहरीक लब्बैक भी कराची से तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ केस में इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि आप गवर्नर को छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दे दें। हर रोज इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं तो ये अच्छा काम भी कर दें। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत-ए-हाल खराब हो चुकी है? इससे पहले भी मुआशी सूरत-ए-हाल खराब थी लेकिन इलेक्शन हुए थे। आला अदलिया के इस हवाले से मुतादिद फैसले भी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत देते हुए कहा कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। हर रोज इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं तो ये अच्छा काम भी कर दें। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस केस के लिए फुल बेंच बना दें। PTI ने फुल बेंच न बनाने की इस्तदा कर दी, जबकि गवर्नर के वकील की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की गई। अदालत ने इस्तफसार किया, आपको कितना वक्त दरकार है? ये पाकिस्तान का मामला है। गवर्नर के वकील ने कहा कि कम से कम 7 रोज दरकार हैं। असद उमर ने 7 रोज का वक्त देने की मुखालफत की तो अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आप अदालत आगे हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज से कुछ भी नहीं होता। अदालत ने गवर्नर के वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत देते हुए आइंदा समाअत से कबल फरीकैन को तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने घरों, दोस्तों और खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में मुनक्किदा सोशल मीडिया टीम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 4 साल के स्याह आमराना दौर में भाई भाई को लड़ाया। जहनी मरीज ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली की कौमी कल्चर बना दिया। नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, इखलाक, भाईचारे के जज्बे उभारें, मुकालमे का जमहूरी और इस्लामी तर्ज तकल्लुम अपनाए। कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। मुआशरे से तकसीम दर तकसीम को खत्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना है। कौमी असम्बली के डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान से लॉजेस कमरे खाली करवाने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। फर्रुख हबीब, ज़हूर अहमद कुरैशी और दीगर मेंबरान लॉजेस के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। 8 मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरों की चाबियां CDA हुकाम के हवाले कर दी। तहरीक इंसाफ के डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान कौमी असम्बली से रिहायशगाहें खाली करवाने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। अरकान के कमरों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। मजिस्ट्रेट सिटी गुलाम मुर्तजा चांडियों की जेर निगरानी ज़ीरी इंतजामिया और CDI एहलकार ऑपरेशन में शरीक हुए। थाना सेक्रेटरीट की पुलिस और लेडीज पुलिस एहलकार भी ऑपरेशन में शामिल रही। फर्रुख हबीब और ज़हूर अहमद कुरैशी व दीगर PTI अरकान के कमरों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाला गया। शंदाना गुलजार ने लॉज खाली करने के लिए मोहलत मांग ली। CDA हुकाम का कहना है कि 8 साबिक अरकान ने कमरे रजाकाराना तौर पर
پر خالی کر کے چابیاں CD حکام کے حوالے کر دیں۔ کچھ ممبران نے کمرے خالی کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ CD حکام کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی ہدایت پر ڈی نوٹیفائی ہونے والے ممبران کو 24 جنوری کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ ممبران کو دی گئی 7 دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد آپریشن شروع کیا گیا۔ انتظامیہ کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پہلے مرحلے کا آپریشن کسی مزاحمت کے بغیر مکمل کر لیا گیا۔ لاجز میں دوسرا آپریشن سوموار کو کیے جانے کا امکان ہے۔ کیمرامین شایان کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔